جو میدان ہوگا وہ یہاں پر لگے گا. اور یہاں سے یہاں آنے کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا اور بہت ہی ٹف تھا. میرا گھٹنا چھل گیا ہے, میری کوہنی چھل گئی ہے. آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اس پہاڑ کی طرف اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, وہ سامنے. ایسے نہیں لوگ حج کی تمنا کرتے ہیں, رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حج کی سعادت دے, کہ حج ایک ایسا مقدس فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کلین کر دیتا ہے. یہ سب سے چھوٹا شیطان ہے, اس کے پیچھے اس سے بڑا شیطان, اور اس کے پیچھے اس سے بڑا شیطان. تو بھیا ابھی صبح کے 3 بج رہے ہیں, 3:05 ہو رہے ہیں صبح کے. تو ابھی ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہوٹل سے نکل گئے ہیں. مارکیٹ دیکھو سب ویسے کھلا ہوا ہے. بھیا رات کے 3 بج رہے ہیں اور کراؤڈ چیک کرو, سب مکۃ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی جا رہے ہیں. 3:15 ہو رہے ہیں. ابھی طواف کرنے میرے ساتھی بھائی جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. ہم پہلے وضو کر لیں گے, وضو نہیں کیا ہم تو ایسے بنا منہ دھوئے اٹھ کے آ گئے. ابھی جا کے وضو کر لیں. یہاں کا ایک دم کلین اینڈ ٹائڈی ایریا ہے. اور یہاں دیکھیے, یہاں پورا مجمع سو رہا ہے, سب یہیں سو رہے ہیں آرام سے, کہ فجر میں آرام سے اٹھیں گے, فجر پڑھ کے سب اپنے اپنے ہوٹل جائیں گے. کون کہہ رہا ہے کہ 3 بج رہا رات؟ ہاں کون کہتا 3 بج رہا ہے رات میں؟ چلیے وضو خانے میں چلتے ہیں, وضو کر لیتے ہیں, پھر نکلتے ہیں. یہ وضو خانہ ہے, تو یہاں پہ آپ وضو کر سکتے ہیں. وہاں ٹوائلٹس ہے اگر آپ کو ٹوائلٹ کرنا ہے. بہت سارے ٹوائلٹس بھی بنے ہیں, ادھر ہے ادھر ہے. یہاں پہ وضو کرنے کا ایریا ہے. الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی تہجد کی اذان ہو رہی ہے, جا کے اندر نماز پڑھیں گے. 3:20 ہو رہے ہیں اور ہم لوگ گیٹ نمبر 79 سے گزرے اندر. اندر آگے ہم لوگ مطاف کی طرف جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. اینڈ حاجی لوگ کو دیکھیے پورے تعداد میں ہے. اینڈ یہ بھائی صفائی سب کر رہے ہیں. زمزم والے بھی اپنے کام پہ لگے ہیں. یہ سب زمزم ہے. تو ابھی نیچے جا رہے ہیں مطاف کی طرف. اوپر والے جو طواف کرتے ویل چیئر میں اور جو نارمل گھر کے کپڑے میں, ان کے لیے یہ جگہ ہے. اور جو احرام کی حالت میں ہے ان کے لیے یہ جگہ, وہ یہاں سے جائیں. فجر کی نماز کے لیے بیٹھ گیا ہے اور پہلی سے بھی کوشش کیے تھے بٹ وہ نہیں. کعبۃ اللہ کی غلاف کو چھوئے, دعا کیے, سب کے لیے دعا کی. ابھی نماز کے لیے بیٹھے ہیں. ابھی بھی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور میں جیسے آپ نے دیکھا غلاف کو پکڑ کے تھا, دعا مانگ رہا تھا اور دھیرے دھیرے کر کے حجر اسود تک گیا. ہاتھ گھسایا, ہاتھ سے ٹچ کیا, فیس گھسایا,
اور جیسے کس کرنے لگا اتنا دھکا کرا شاید کہ میں پھینکا گیا. اور پھر ایک بار جب وہ انرجی لوز ہوتا ہے تو بھیا آپ کچھ ہی نہیں کہہ نہیں سکتے, پورا آپ دھکا کھاتے کھاتے باہر نکل جاتے ہو. میرے ابھی بھی بدن ہاتھ کانپ رہے ہیں, پیر پورا کانپ رہا ہے. اتنا پاور لگایا ہوں قریباً آدھا گھنٹہ کراؤڈ کو ہولڈ کر کے تھا. بٹ اتنا اسٹرینتھ لگتا ہے سب کا پش, میں نے جتنے لوگ حجر اسود کو چھونا چاہتے ہیں ان سب کا پش کا طاقت پورا لگتا ہے, اور ان کو بلاک کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تب بھی میں نے قریباً 20 سے 25 منٹ میں بلاک کر کے رکھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہو. میں یہاں پہ تھا, یہ والی دیوار پہ, یمنی کارنر پہ, اور یہاں سے یہاں آنے کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا اور بہت ہی ٹف تھا. اینڈ میں نے حجر اسود کو ٹچ تو کیا بٹ کس نہیں کر پایا. انشاءاللہ اگلی بار ٹرائی کریں گے تو پھر سے ہوگا. میرا پورا احرام بھیگ چکا ہے پسینے سے, اینڈ میرے ہاتھ پیر ابھی بھی کانپ رہے ہیں کیونکہ پاور انرجی بہت یوز ہوا اینڈ ساری انرجی ختم ہو گئی. ابھی زمزم پیا ہے. اب یہ گرین لائٹ ہے یہاں پہ, یہاں سے طواف سٹارٹ کریں گے. میرا گھٹنا چھل گیا ہے, میری کوہنی چھل گئی ہے, بٹ الحمدللہ کعبۃ اللہ تک پہنچے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت ہے. تو ابھی نفل طواف کریں گے. نفل طواف کرنے کے لیے آپ کو دہنا بازو کھلا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ایسے نکالتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, ایسا ہونا چاہیے. اب ہو گیا ہے. یہ ہمارے پیچھے گرین لائٹ, آپ کو گرین لائٹ دکھ رہا ہے, حجر اسود والا کارنر. یہاں سے ہم لوگ نیت کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو بھیا اب بج رہے ہیں 8 اور میں نکل گیا ہوں حرم شریف سے, اور اب میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں. آیا تھا 3 بجے رات کو, ابھی صبح کے 8 بج رہے ہیں, واپس جا رہا ہوں. یہاں پہ سوچا کہ مکہ شریف میں ہی حرم شریف کے اندر ہی میں شاور لے لوں. آپ کمپاؤنڈ میں دیکھو کہ بہت سارے ٹوائلٹس ہیں, WC جس کو یہاں لکھے ہوئے رہتے ہیں WC, دیٹ از ٹوائلٹس, میل فیمیل کے الگ ہیں. 8 نمبر کا میل ٹوائلٹ کے اندر نا بیسمنٹ لیول پہ شاور ہے. تو آپ اگر ہوٹل آپ کا دور ہے اور آپ کو شاور لینا ہے, غسل کرنا ہے, تو آپ حرم شریف کے اندر ہی شاور لے سکتے ہو. میں نے وہی لیا. جب یہ موقع مل رہا ہے حرم شریف کے اندر شاور لینے کا تو میں نے غسل کر لیا, اور اب ہوٹل واپس جا رہے ہیں. ہم لوگ کا نکلنا ہے زیارت کے لیے. کنگ فہد گیٹ سے نکل کے, دیٹ از 79 نمبر والا گیٹ سے نکل کے سیدھے آئیں گے تو آپ کو جبل عمر پڑے گا. جبل عمر سے سیدھے ابراہیم خلیل روڈ ہے یہ والا, اور ہمارا ہوٹل بھی یہیں پہ ہے. اچھا میں مسواک کر رہا ہوں, پیسٹ ٹوتھ برش نہیں کر رہا. میں فریش ہو گیا ہوں, شاور میں نے لے لیا ہے. اب جا رہے ہیں ہوٹل اور ہم لوگ نکلیں گے. بس ویٹ کریے, بریکفاسٹ کھائیں گے اینڈ نکلیں گے زیارت کے لیے. یہ ابھی ہم لوگ کبوتر چوک میں ہیں. اتنے سارے کبوتر آپ کو دکھ رہے ہیں.
बहुत मज़ेदार सीन है यहाँ का कबूतरों का। उड़ते हैं वापस आते हैं, उड़ते हैं वापस आते हैं, हज़ारों की तादाद में है। ये बस है, हम लोग ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं ये बस में। चलिए आपको ले चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सब्र अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। मुशरिकीन अपनी अमानतें आपके पास रखवा कर जाया करते थे। उनको सामने पहाड़ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इस पहाड़ पर गए। 5514 फीट इसकी ऊंचाई है। 5514 फीट इसकी ऊंचाई है। 2.5 घंटे इसमें ऊपर जाने के लगते हैं। 2.5 घंटे दुश्वार रास्ता है, पेचीदा रास्ता है, पॉसिबल नहीं है ऊपर जाना। लेकिन इश्क रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले अभी भी आप देखें कि ऊपर जा रहे हैं। सफ़ेद लिबास में मर्द हजरात, काले लिबास में ख़वातीन, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाने उनके कहाँ कहाँ कदम मुबारक रखते हैं। यहाँ आने का मकसद ये हमें इल्म होना चाहिए कि ये दीन जो हम तक पहुँचा है इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके आए तो पाँव जो थे वो उनके ज़ख्मी हो गए थे, छाले आ गए। बहुत तकलीफ से यहाँ तक पहुँचे। पहाड़ को देखना ज़रूर है, लेकिन यहाँ आने का मकसद अपने ईमान की हिफाजत करना है। और हमें ये इल्म होना चाहिए कि ये दीन जो हम तक पहुँचा है उसकी ये ज़िंदा मिसाल है कि जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, जिसके लिए अल्लाह पाक ने इस कुल कायनात को तख्लीक किया, उन्होंने किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की। गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि सारी बात बता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पर बिठाया और इस गार के अंदर लेकर गए। अब जब गार में पहुंचे तो क्या हुआ कि उसमें बड़े बड़े सुराख थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शिद्दत से वो तड़प रहे, बेचैन हो रहे। अब इतना शदीद दर्द था कि आंखों से आंसू आ गए। जब आंखों से आंसू आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, जाग गए। जब जागे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सिद्दीक़ क्या बात है, तुम रो रहे हो? हम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर जा रहे हैं इसलिए रो रहे हो? बैतुल्लाह से जुदा हो रहे हैं इसलिए जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पाँव में कोई चीज़ काट रही है और दर्द की शिद्दत से मैं तड़प रहा हूँ, बेचैन हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिद्दीक़ पाँव हटाओ। तो जब पाँव हटाया तो क्या देखा कि वहाँ पर एक खौफनाक किस्म का सांप वहाँ पर मौजूद था। बाद रिवायात में है कि जहरीला जानवर था, लेकिन ऑथेंटिक बात यही है कि वहाँ पर एक जहरीला सांप वहाँ पर मौजूद था। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घबरा गए कि इस सांप ने मुझे इतना नुकसान पहुँचाया, तकलीफ दी, कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न पहुँच जाए। उसी लम्हे अल्लाह पाक ने उस सांप को बोलने की ताकत दी और उस सांप ने कहा कि सिद्दीक़ तुम घबराओ मत, मैं एक जिन हूँ। और मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आपके हुस्न की तारीफ़ें सुनी, आपकी सदाकत की तारीफ़ें सुनी, आपकी सीरत की तारीफ़ें सुनी, आपकी अमानत की तारीफ़ें सुनी। मैं तब से लेके आज तक आपका दीवाना हूँ और तब से लेके आज तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका दीदार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। गारे सौर के अंदर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी वही मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा कर दे। और जो इश्क़ मोहम्मदी में ढल गया उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। वो जो मुशरिकीन पूरे मक्का में ढूंढ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिले, तो कदमों के निशान से पहचानते पहचानते इस पहाड़ पर आ पहुंचे, इस पहाड़ पर जबल सौर पर। अब जब यहाँ पहुंचे तो क्या देखा कि एक 7 साल की मासूम बच्ची हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की छोटी बेटी, वो अपने अब्बा जान के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर इस पहाड़ पर जाया करती थी कि जहाँ पर 2.5 घंटे जाने के लगते हैं, 5500 फीट जिसकी ऊंचाई है। तो मुशरिकीन ने जब उसको देखा तो उसको रोका, उस पर तशद्दुद किया और उससे पूछा बताओ तुम्हारे अब्बा जान कहाँ है? क्योंकि मुशरिकीन को पता था कि अगर कहीं मिलेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलेंगे, क्योंकि उनकी बहुत मोहब्बत थी, बहुत गुर्बत थी। बच्ची ने नहीं बताया। तो इतनी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जब गार से नज़र पड़ी नीचे तो घबरा गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आका मुशरिकीन तो अब हमारी जान के जो दुश्मन थे वो तो इस पहाड़ पर भी आ पहुंचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि सिद्दीक़ हम न करो, सिद्दीक़ घबराओ मत, हमारे साथ अल्लाह की मदद है। उसी लम्हे अल्लाह ने कबूतरों को हुक्म दिया। ये मक्का में जितने भी कबूतर आपको नजर आते हैं, कबूतरों को हुक्म दिया, उन्होंने घर बनाए, अंडे दिए, बच्चे दिए। मकड़ियों को हुक्म दिया, उन्होंने पूरी गार को जालों से भर दिया। और जैसे ही मुशरिकीन ऊपर गार की तरफ पहुंचे तो क्या देखा कि पूरी गार जालों से भरी हुई है, अंदर कबूतरों ने घर बनाए हुए हैं,
पॉसिबल ही नहीं है कि अंदर कोई होगा। कदम कदम पे अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई और ये दीन जो हम तक पहुंचा है बहुत ही कुर्बानियों से पहुंचा है। और उसकी जिंदा मिसाल ये कौन सा पहाड़ था? जबल सौर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। और किस कदर उन्होंने अपनी जिंदगी तकलीफ में गुजारी, किस कदर दीन के लिए उन्होंने तकालीफ को बर्दाश्त किया, उसकी ये जिंदा मिसाल हमारे सामने ये पहाड़ था। कौन सा पहाड़? जबल सौर। ऐसी मुकद्दस सरजमीन पर आप लोग मौजूद हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि ना उनमें इबादत का शौक होता है, ना उनको दीन की समझ बूझ होती है, लेकिन ये ऐसी मुकद्दस सरजमीन है कि जब यहाँ से जाते हैं उनकी जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। राइट साइड पे येलो कलर के बोर्ड आपको नजर आएंगे, ये निशानदही करता है कि हम मैदान अरफात में पहुंच चुके हैं। राइट साइड पे जितना भी रकबा है ये सब का सब मैदान अरफात है। और मैदान अरफात वो मुकद्दस सरजमीन है कि मरने के बाद हम सब ने कहाँ इकट्ठे होना है? जितनी बाकी जिंदगी बच गई है, जो कुछ भी करेंगे यहाँ एक एक पल, एक एक लम्हा कैसा गुजरा, सबका हिसाब किताब होगा। आज तो फिक्र नहीं है ना, लेकिन आज किस्मत से, नसीबों से, दुआओं से यहाँ पहुंचे हैं। सच्चे दिल से तौबा कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उस मैदान हशर में मरने के बाद जब हमने पहुंचना है, अल्लाह हम सबको सुरखुरू फरमाए। हज के दिनों में बहुत शदीद गर्मी होती है, गर्मी तो होती है। इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर 9 ज़िलहज को ज़ायरीन हज का खुतबा सुनते हैं। बहुत शदीद टेम्परेचर होता है। 1 year 365 days, एक साल 364 दिन 364 डेज ये मस्जिद बंद है, इसको ताला लगा होता है। कोई अजान नहीं होती, कोई इसमें जमात नहीं होती। खुलती कब है? सिर्फ और सिर्फ 9 ज़िलहज को इमाम साहब आते हैं, हज का खुतबा देते हैं। अभी यहाँ रुकेंगे, 2 रकात तहियतुल मस्जिद नफिल अदा करेंगे और आगे फिर आगे की ज़ियारत की तरफ चलेंगे। इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। जितने भी आपको राइट एंड लेफ्ट दरख्त नजर आ रहे हैं, इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठ के 9 ज़िलहज को जो है वो हज का खुतबा सुनते हैं। लोगों को जहां मौका मिल जाए, टेम्परेचर इतना होता है कि लोगों की ख्वाहिश होती है बस सायेदार जगह कहीं मिल जाए। और इस कदर यहाँ पे गैदरिंग होती है, क्राउड होता है कि मौका ही नहीं मिलता। तपती धूप के अंदर लोग छतरी लेकर बैठकर सारा दिन गुजारते हैं। और तयम्मुम होता है मिट्टी से कि आपके हाथों पर मिट्टी टच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मिट्टी नहीं है। तो मैंने तो लोगों को यहीं देखा कि मस्जिद की दीवार से तयम्मुम कर लेते हैं। पानी यहाँ पर नहीं है। अगर आपके पास पानी है तो उसको पीने के लिए रखें। दीवार से तयम्मुम करके 2 रकात तहियतुल मस्जिद नफिल अदा करने, हज की दुआ करनी है, मग़फ़िरत की दुआ करनी है और फिर वापस आना है। पूरे साल ये मस्जिद बंद है। 18 एकड़ के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है। 64 इसके दरवाजे, और ये पूरा साल मस्जिद बंद होती है। इसमें कोई अजान नहीं होती, कोई नमाज नहीं होती। और खुलती किस दिन है? सिर्फ और सिर्फ 9 ज़िलहज को। इमाम साहब आते हैं। खुल तो वैसे पहले जाती है, रिपेयर करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। खुलती कब है? 9 ज़िलहज को। इमाम साहब आते हैं और यहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है। अब इतना जो यहाँ पे क्राउड होता है, गैदरिंग होती है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है किसी तरीके से मौका मिल जाए मस्जिद के अंदर जाने का। मैं 2 बार आया हूँ हज पर और दोनों बार मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। इस कदर यहाँ पे रश होता है, इस कदर। तो लोगों की ख्वाहिश होती है सीढ़ियों में मौका मिल जाए, अंदर सेहन में मौका मिल जाए, बस मौका मिल जाए। तो खुश नसीब लोग चले जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, इमाम साहब का इंतज़ार करते हैं, हज का खुतबा दिया जाता है। हज का खुतबा सुनने के बाद फिर यहाँ पर स्टे करते हैं। ज़ोहर नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ी, जैसे ही मगरिब की अज़ान की आवाज़ आई, सब के सब ज़ायरीन यहाँ से अरफात की हदूद को छोड़कर सब ने मुज़दलिफ़ा में पहुँचना है हर कीमत पर। अब जो 9 ज़िलहज का दिन है, अरफा का दिन है, उस दिन की अहमियत क्या है? उस दिन की अहमियत ये है कि उस दिन जब एहराम की हालत में ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उस दिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, बड़े रहीम है, बड़े रहमान है। वो जो गुनाहों में डूबे हुए इंसान जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं? नीट एंड क्लीन कर देते हैं। उनको ऐसा करते हैं, गुनाहों से पाक कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं जैसे उनका ताज़ा ताज़ा जन्म हो। उसकी वजह कि शैतान जब जन्नत से निकाला गया तो उसने एक सजदे से इनकार किया, और अल्लाह ने उसको जब निकाल दिया तो शैतान ने क्या कहा कि है मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तेरे बंदों को गुनाहों की तरफ राग़िब करूँगा, गुनाहों की दलदल में धकेल दूँगा। और अल्लाह ने क्या कहा? जो मुझ पर ईमान लाएंगे
जो साबित कदम रहेंगे वो ईमान के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। 95% हम शैतान के रास्ते पर चल निकलते हैं, ऐसा है या नहीं देखिए, ऐसा है ये मानना पड़ेगा, ये है। लेकिन आज भी इस शैतानी दौर में, नफ्स-ओ-नफ्सी के दौर में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईमान के ऊपर अपनी ज़िंदगी को कायम रखा हुआ है और ईमान के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं लोग हज की तमन्ना करते हैं, रो रो के दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें हज की सादत दे, कि हज एक ऐसा मुकद्दस फरीज़ा है कि अल्लाह ताला बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो भैया हम लोग अभी आए हैं मस्जिदुल निमरा और यहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए पहले नमाज अदा कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। हम लोग ये मस्जिद निमरा के बाहर खड़े हैं और ये देखिए बोर्ड है, यहाँ पे बता रहा है कि अरफात यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मुज़दलिफ़ा है ना, मुज़दलिफ़ा, हाँ इसके इस पार है या उस पार है? इस पार है ना। यहाँ से तो फिर चल के जाना पड़ता है ना आज के टाइम में, चल के जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जब हज पे आएंगे तो ये भी करेंगे इंशाल्लाह। और नमाज़ पढ़ ली है 2 रकात नफिल। अब यहाँ से अभी कौन सा है? ये अब्दुल्ला है, ये भी अब्दुल्ला है, मैं भी अब्दुल्ला हूँ, ये भी अब्दुल्ला है, मगर ये बच्चा अब्दुल्ला है, छोटा है। अभी कितना उम्र है अभी? मेरे 18 साल। 18 हो गया, तो 15 लग रहा मगर फिर भी। तो हम लोग अभी अरफात के पूरे बाउंड्री में हैं और ये अरफात का मैदान ही है। जब क़यामत के दिन हम लोग को यहाँ फिर से अल्लाह ताला उठाएंगे, हम लोग का हिसाब किताब होगा, हर एक इंसान का हिसाब किताब होगा, हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका हिसाब किताब होगा। और फिर जन्नत और जहन्नम की डिसीजन ली जाएगी, कौन कहाँ जाएगा, जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा, वो डिसाइड अल्लाह ताला करेंगे और वो इसी मैदान में, अरफात के मैदान में ही होगा। सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला मरने के बाद हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। तो अभी हम लोग आए हैं जबल रहमत और यहाँ पे भी अभी दुआ करेंगे। भाई ये सामने पहाड़ देखे हैं जी, ये सफ़ेद कलर का पिलर और ब्लू कलर का पिलर जो एक से लंबा सितून नजर आ रहा है, ये वो पहाड़ है अक्सर हम टीवी पे देखते हैं हज के मौके पर। हाँ। ये एहराम की हालत में ज़ायरीन इस पहाड़ पर मौजूद होते हैं, कोई दुआएं मांगता है, कोई कुरान की तिलावत करता है और कोई अल्लाह से अपनी गुफ्तगू करता है, अपनी फरियाद करता है, बातें करता है। ये वो पहाड़ है जो हज के मौके पर हम लोग हैं। इस पहाड़ की खसूसियत क्या है कि मैदान अरफात के अंदर ये वो मुक़द्दस पहाड़ है कि जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा जब दुनिया में बिछड़ गए थे तो इसी पहाड़ पर, इसी मुकाम पर अल्लाह पाक ने उनकी मुलाकात करवाई। दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं दुआओं का एहतमाम करने के लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। उसी निस्बत से हम भी यहाँ पहुँचते हैं दुआओं का एहतमाम करने के लिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल करें। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह दीजिए कि मैं इनके बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ, बहुत करीब। मुजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फल्यस्तजीबू ली, जब ये मुझे पुकारेंगे, जब ये मुझसे दुआएं मांगेंगे, मैं इनकी दुआओं को सुनूंगा, मैं इनकी दुआओं को कबूल करूंगा। ऐसे नौजवान साथी अगर पैदल सफ़र करें मैदान अरफात में तो मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं इस कोने से उस कोने में जाने के लिए पैदल। इतना बड़ा ये मैदान अरफात है। और मैदान अरफात की खसूसियत क्या है कि मरने के बाद आज तक इस रूए ज़मीन पर जितने भी लोग जहाँ जहाँ वफ़ात पा चुके हैं, मैंने मरना है, मेरे वालिदैन ने वफ़ात पाना है, मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बुज़ुर्ग, कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात जो भी लोग जहाँ जहाँ वफ़ात पा चुके हैं, मरने के बाद हम सब ने इधर ही इकट्ठे होना है जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं। मैदान का जो हशर होगा, हशर का जो मैदान होगा वो यहाँ पर लगेगा। और उस दिन का मंजर अगर हमें इल्म हो कि उस दिन क्या होगा तो खुदा की कसम एक लम्हा भी हम सजदे से सर ना उठाएं, हम अपनी इबादत से गाफिल ना हो। ये आज 10 मिनट की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इधर साए से आके धूप में खड़े हो, मैं चैलेंज करता हूँ, आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते। घबराएंगे कि किसी तरह साएदार जगह पर चले जाएं। लेकिन ये याद रखें, मैदान हशर जब लगेगा, क़यामत का जो दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, बिल्कुल हमारे सर पर होगा। और लोग इस कदर
उस दिन का मंजर अगर लोगों को पता लग जाए कि उस दिन क्या होगा, कि लोग रोएंगे, धाड़े मार मार कर लोग रोएंगे, चीखो पुकार होगी, आहें होंगी, सिसकियाँ होंगी, और लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उस दिन मिज़ान का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा। आज तो हम दुनिया में वक्त को गुजार रहे हैं, हमें परवाह भी नहीं है, नमाजें कज़ा कर रहे हैं, परवाह भी नहीं है। एक नमाज हमारी कज़ा हो गई, एक नमाज, सारी ज़िंदगी सजदे कर ले, उस नमाज को दोहरा दे, रिपीट कर दे, हम नमाज कज़ा अदा नहीं कर सकते। तो 1000 रातों से अफजल रात करार दिया गया है जी मुज़ल्फ़ा की रात। मक्का से क्या करना है, जब अरफात पहुंचना है तो यहाँ पे ज़ोहर की खुतबा सुना, खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की, उसके फ़ौरन बाद मगरिब की नमाज का इंतज़ार किया। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, सब के सब ज़ायरीन वहाँ से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, मुज़ल्फ़ा में पहुँचते हैं। अब जब मुज़ल्फ़ा में पहुँचे तो पहुँचते ही यहाँ पर मगरिब की नमाज अदा की, ईशा की नमाज अदा की, और उसके बाद हाजी खाना खाते हैं, सोते हैं, इबादत करते हैं, सारी रात वहाँ पर गुजारनी है। अब गुजारने के बाद सुबह 10 ज़िलहज को जमरात को शैतान को कंकरियां मारने के लिए पहुंचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मक्कतुल मुकर्रमा के पहाड़ जब हरे भरे हो जाएं तो समझ लो क़यामत नज़दीक है। दिसंबर और जनवरी के स्टार्ट में, दिसंबर के एंड में, जनवरी के स्टार्ट में इतनी शदीद बारिशें हुई कि ये सब के सब दरख्त जो है वो हरे भरे हो गए, और लोगों ने तौबा ताइब की, सजदे किए और अल्लाह से माफिया मांगी कि अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो गई। तो ये वो सारे के सारे पहाड़, अब टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये धूप की वजह से जल गए, ये वो हरी घास नहीं है, ये येलो हो गई है। लेकिन ये वही पहाड़ है कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि जब हरे भरे हो जाए तो क़यामत नज़दीक है। मस्जिद मशअरुल हराम, कुरान पाक के अंदर 15वें सिपारे में इस मस्जिद का जिक्र है, और रिवायात में क्या है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुकाम पर उन्होंने अपने खैमे लगाए थे और यहाँ पर इबादत की थी। 9 ज़िलहज को ये मस्जिद खुलती है सिर्फ एक दिन के लिए, और जो मुज़ल्फ़ा में लोग क़याम करते हैं, फिर यहाँ पर स्टे करते हैं, दुआएं मांगते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इबादत करते हैं। ये मस्जिद मशअरुल हराम है, राइट साइड पे देखें, कुरान पाक के अंदर इसका जिक्र है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमे यहाँ पर लगाए थे। और जदीद तर्ज पर बनाई गई है, वक्त बहुत सारा बदल गया, लेकिन जगह वही है, लेकिन इसको बड़े जदीद तर्ज पर मस्जिद बनाया गया है, मस्जिद मशअरुल हराम। सारा कंकरी फेंका हुआ है। हाँ तो है। ये कंकरियां उठाकर 10 ज़िलहज को शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात में हर कीमत में पहुंचना होता है। ये भी हज का प्रोसेस है। ये नीचे कंकरियां मौजूद हैं पूरे मुज़ल्फ़ा में, जहां आपको मौका मिलेगा, अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हज पर बुलाए, तो यहीं से कंकरियां उठाकर कहाँ जाएंगे, शैतान को, खबीस को कंकरियां मारने के लिए जमरात में हर कीमत में पहुंचना है। कहा जाता है कि यमन का एक बादशाह था अबरा, हिस्ट्री में दर्ज है कि बहुत शदीद और बहुत जालिम वो बादशाह था। उसने अपने मुल्क में एक बहुत बड़े मंदिर को तामीर करवाया, उस पे सोने के बुत रखे। उसकी ख्वाहिश थी कि लोग जो है वो मेरे मंदिर में आए और इबादत करें। तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह के घर को गिरा दूं, तो अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि मैं अपने घर की खुद हिफाजत करूंगा। जैसे ही वो इस रास्ते से हाथियों के लश्कर को लेकर गुजरा, उन अबाबील के जरिए अल्लाह ने उस सारे के सारे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने अपना अजाब यहाँ पर नाजिल किया था। हर शख्स की जुबान पे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह होनी चाहिए। तो ये सारी वादी मैसर है। आप लोगों के लेफ्ट हैंड पे एक पहाड़ आएगा, अभी गाड़ी रुकेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर आए, जिनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगम्बर हैं कि जिन पर सबसे ज़्यादा आजमाइशें आई हैं। सबसे बड़ी आजमाइश क्या आई कि बिल्कुल ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा। उसके बाद क्या आजमाइश आई कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से थे, मासूम बच्चे, तपते सहरा में उनकी वालदा बीबी हाजरा, और क्या हुआ, हुक्म आ गया कि बच्चे को और बीवी को छोड़कर चले जाओ, तो छोड़कर चले गए। फिर क्या आजमाइश आई कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े से जवान हुए तो ख्वाब आ गया कि इब्राहीम अपनी सबसे कीमती चीज़ मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। तो उनके पास बहुत सारे ऊँट थे, सब कुर्बान कर दिए। चंद दिन बाद फिर ख्वाब आया कि इब्राहीम अपनी सबसे कीमती चीज़ मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। तो उनके पास जितनी बकरियाँ, ऊँट, भेड़, जो चीज़ भी, सब कुर्बान कर दी।
चंद दिन के बाद फिर ख्वाब आया कि इब्राहिम अपनी सबसे कीमती चीज़ मेरे नाम पर कुर्बान कर दे। तो एक वालिद के पास उसकी औलाद से कीमती कोई चीज़ नहीं है, तो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, आंखों में सुरमा लगाया और लेकर इस पहाड़ पर आ गए। अभी गाड़ी रुकेगी, मैं आपको दिखाऊंगा लेफ्ट हैंड में। अब जब यहाँ पहुंचे तो शैतान को जो हम 3 दिन कंकरियां मारते हैं, क्यों मारते हैं? शैतान ने वरगलाया था, वसवसे दिए थे कि इब्राहिम तुम्हें अल्लाह ने एक बेटा दिया, वो भी रब के नाम पर कुर्बान कर रहे हो। हजरत इस्माइल को क्या कहा कि देखो तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें रब के नाम पर ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पहुंचे, अब आंखों पर पट्टियां थी, वालिद के भी और बेटे के भी। अब छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं चली, तो हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम क्या पढ़ रहे हैं? हजरत इब्राहिम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को वो अदा ऐसी पसंद आई, ऐसी पसंद आई। हजरत इब्राहिम क्या करें कि अल्लाह तो बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। और हजरत इब्राहिम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तो बहुत अजीम है। बिल्डिंग खत्म हो रही है, सामने एक पहाड़ है, इसके ऊपर एक छोटी सी मेहराब है 1-1.5 फुट की, छोटा सा सिटी और आपको नजर आएगा। देखें, आया जी नजर? ये मुकाम, ये पहाड़ आज भी वैसे का वैसा मौजूद है कि जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रब के नाम पर कुर्बान करने के लिए लेकर आए। और हजरत इस्माइल ने क्या कहा कि वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, कि ए रब मैं तेरी रजा में राजी हूँ, ए रब मैं तेरी रजा में राजी हूँ। अल्लाह को वादा ऐसी पसंद आई, फरिश्ते को हुक्म किया और वो जन्नत से एक दुम्बे को लेकर आए। जब आंखों से पट्टी हटाई, छुरी जब चली तो क्या देखा कि वहां पर एक दुम्बा ज़िबा था। दुनिया चांद पर चली गई, हर चीज बदल गई। ये पहाड़ मुकद्दस मुकाम आज भी वहां मौजूद है कि जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक रखे गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक रखे गए। 10 ज़िलहज को जब वहां से कंकरियां लेकर जाते हैं तो शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात में हर कीमत पे पहुंचना होता है। ये हज का एक प्रोसेस है, कोई रुकन भी अदा ना हुआ हज कंप्लीट नहीं होगा। ये लेफ्ट हैंड पे देखें, 4 मीनार आपको नजर आएंगे। आए जी? हाँ। ये है मस्जिद खैफ के जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारा और पैगंबर के मकबरे यहाँ पर मौजूद है। 1 मिनट मुझे दे दें। वो सामने देखें आप, आपको ये गोल जालियां नजर आ रही हैं, 3 बड़े बड़े पिलर, इनके दरमियान में एक बहुत बड़ी छतरी आपको नजर आएगी। हाँ। ये जो बहुत बड़ी छतरी है, ये है सबसे छोटा शैतान। ये सबसे छोटा शैतान है, इसके पीछे उससे बड़ा शैतान और उसके पीछे उससे बड़ा शैतान। इस शैतान पे खबीस पे लानत भेजे भाई। 25 लाख के राउंड अबाउट ज़ायरीन इन्हीं खैमों के अंदर हज के मौके पर आकर 5 दिन स्टे करते हैं। ये वाटर प्रूफ है, इनमें आग भी नहीं लगती, बारिश का पानी भी नहीं आता। बहुत जदीद सहूलियात सऊदी हुकूमत ने दी है और इसके अंदर वाफर खाना होता है, रंग रंग के यहाँ पर खाने होते हैं। इतनी यहाँ पे लोग एक दूसरे को मोहब्बत के साथ पेश आते हैं कि लोगों को यहाँ से वापस जाने पहाड़ों के ऊपर भी देखिए खैमे आपको नजर आएंगे, दरमियान में भी खैमे नजर आएंगे और नीचे भी नजर आएंगे। राइट हैंड में ये सब के सब मिला के खैमे। कंकरियां उठाई, शैतान को कंकरियां मारने के लिए चले गए। उसके बाद इंतजार करते हैं कि कब उनको इतला मिले कि कुर्बानी हमारी हो गई। जैसे ही कुर्बानी की इतला मिलती है, सब के सब अल्लाह के घर जाते हैं, तवाफ करते हैं, सर के बाल कटवाते हैं, अहराम बोलते हैं, गुस्ल करते हैं, फिर नए कपड़े, रफ कपड़े जो पहनते हैं रूटीन में, वो कपड़े पहनकर वापस होटल नहीं जाना, बिना के खैमों में आना है। यहाँ आकर नमाजें अदा की, खाना खाया, इबादत की, सो गए। सुबह 11 ज़िलहज को फिर उठे, फिर कंकरियां उठाई, फिर शैतान को कंकरियां मारने के लिए गए। उसके बाद फिर मिना में वापस आ गए, अल्लाह के घर गए, तवाफ किया, वापस मिना के खैमे में आए, इबादत की, सो गए। 12 ज़िलहज को फिर उठे, फिर कंकरियां उठाई, शैतान को कंकरियां मारी। उसके बाद अल्लाह के घर गए, तवाफ किया। उसके बाद उनका हज मुकम्मल हो गया। तो ये हज का प्रोसेस था। इसी पहाड़ पर नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम। और रिवायात में क्या है कि सारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक की वही नाजिल हुई तो कई दिन तक शदीद बुखार में मुब्तला। नूर इसलिए कहा जाता कि ऐसी तजल्ली थी, ऐसा वो नूर था कि उसको नूर कहा जाता है। इसी पहाड़ पर एक गार है, उस गार का नाम है गार हिरा। और ये वो गार है कि जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे, अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करते थे। तो साथी भी आया था जी, नजर आ गया। ये मस्जिद ज़ायरीन के लिए खुली है, जब आपका दिल चाहे आप इस मस्जिद में जाएं, विजिट करें।
सूरह जिन यहाँ पर नाजिल हुई थी। ये राइट साइड पे आपके सामने मस्जिद है, मस्जिद सबसे अजीम सबसे बड़ी फतह। और ये मस्जिद शजर, ये लास्ट में कॉर्नर पे देखें, ये मस्जिद शजर है। यहाँ पर दरख्त मौजूद थे कि वहाँ पर पीछे कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन जब होश हवास में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक बार हम रमजान में छत पर गए सहरी के वक्त, तो देखा कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं, तो जब अपने आप को झंझोड़ा तो देखा वहाँ पर कुछ भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसी फीलिंग्स लोगों ने वहाँ पर मौजूद थी, लोगों ने महसूस की। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जैसी हम नियत करेंगे। उसके आगे एक मस्जिद है, मस्जिद फतह। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबसे अजीम फतह जो थी वो फतह मक्का थी। और फतह मक्का के मौके पर वहाँ पर फतह का झंडा लहराया गया। और उसके सामने एक मस्जिद है, मस्जिद शजर। मुशरिकीन आपको पैगंबर नहीं मानते थे, ईमान नहीं लाते थे, तो अल्लाह ने दरख्त जो वहाँ पर मौजूद थे, दरख्तों को बोलने की ताकत दी। दरख्तों ने शहादत दी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी हैं। ये हरम की बैक साइड है, सफ़ा मरवा की बैक साइड, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। आज भी वो मुकाम मौजूद है कि जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। और ये पहाड़ देखें, ये जो पहाड़ है, ये है शेबा अबी तालिब। ये वो पहाड़ है कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान को मुशरिकीन ने 3 साल तक कैद करके रखा। और देखें कि जैसी गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ेगी, तो सफ़ा मरवा की बैक साइड पे जो बादशाहों के पुराने महलात हैं, उनके बिल्कुल साथ एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर अबू कुबैस उसको कहा जाता है। और उसकी अहमियत कीमत क्या है कि मुशरिकीन आप पर ईमान नहीं लाते थे, पैगंबर नहीं मानते थे। तो मुशरिकीन ने कहा कि हाँ, अगर आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं तो हम आपको पैगंबर मानेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये राइट साइड पे देखें, इस पहाड़ की तरफ अपने हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। वो सामने ये बादशाहों के पुराने महलात हैं, इनके साथ जो ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इसको अबू कुबैस कहा जाता है। आया नजर जी, देखें वो सामने, बिल्कुल सामने वो जो बस जा रही है, देखें उस बस के बिल्कुल पीछे वो सारा अबू कुबैस पहाड़ है। A few moments later. मैंने अभी कबाब लिया है, आफरीन का शौरमा है, श्रिम्प शौरमा एंड फ्रेंच फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक भी पिएगी। हम लोग अभी आए हैं, कोई एक शॉप है, क्या नाम था इसका? फरूज टेस्ट ना, फरूज टेस्ट। तो ये रेस्टोरेंट में आए हैं, खा लेते हैं, फिर होटल जाके भी खाएंगे लंच अगर वहाँ अच्छा हुआ, वरना ये तो खा के पेट भर ही ले रहे हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए खाना खा लेते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अडियोस।